Hello programmers and future programmers, welcome to the complete C Sharp course where you start your coding journey with Ali Code Journey. एंड इस सीरीज में हम कंप्लीट सी शार्प बेसिक से लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक करेंगे एंड देखेंगे कि हम किस तरह कंप्लीट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं. Now before jumping into the code, I have a question for you. Now every day millions of people use applications like Microsoft Office and desktop application, Unity games and a lot of application. But have you ever thought which actual things that power these application? In most of the cases, it's C Sharp. C Sharp wasn't created because Microsoft just wanted another language. It was created to solve real problems of the developers, to build applications more simpler in an efficient way. So before we jump into writing our first program, let's understand what is the story behind C Sharp, who created it, why was it created, and what is .NET and .NET framework. And actually these terms like C Sharp, .NET framework are actually similar to each other or not. And at the end of this video, you have the clear understanding of this concept and you can write your first code confidently. Now C Sharp was developed by Microsoft and officially released in year 2000. And C Sharp is a programming language. अब programming क्या होता है? Programming is a way to communicate with the computer. Now, अब कोई भी हमने कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म कराना हो, कुछ भी करना हो, तो वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए करेंगे. इज सिंपली अ ब्रिज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. Now C Sharp is a modern, high level and object oriented programming language created by Microsoft. एंड तुम्हें पता है सी शार्प की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? इज इट्स अडेप्टेबिलिटी एंड ऑल राउंड कैपेबिलिटीज दैट यू कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, यूनिटी गेम्स एंड अ लॉट ऑफ अदर एप्लीकेशंस बाय जस्ट यूजिंग सी शार्प एंड .NET फ्रेमवर्क. नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड सी शार्प? लाइक तुम्हारे माइंड में भी एक दफा जरूर आया होगा कि इसको सी शार्प क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज सी हैशटैग, बट इट्स नॉट करेक्ट. इट इज कॉल्ड C Sharp because actually in music the hashtag symbol is called sharp and Microsoft borrowed that symbol to represent C Sharp as to represent more modern language in C family. And a question arises कि जब C लैंग्वेज थी हमारे पास, C++ थी, तो Microsoft को ज़रूरत क्या पड़ी कि C Sharp बनाने की? तो इन 1990s के जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बड़ी तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर रहे थे, so they need a language which is easy to maintain, more secure and can have more scope, better scope. So Microsoft wanted a language which is easier to maintain and supported object oriented programming from the beginning. That's why Microsoft created C Sharp to answer all these. Now what is .NET framework? Like you often hear these words like C Sharp, .NET framework. Let me explain you. But before jumping it, let me ask you a question. Suppose I give a same pizza recipe to two people. Now एक बंदे को मैं रेसिपी के साथ एक fully equipped kitchen, तमाम ingredients, oven and utensils, जो यानी कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो कुछ हमें चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, और एक बंदे को मैं सिर्फ वो पिज़्ज़ा रेसिपी ही प्रोवाइड करता हूँ. तो आपको क्या लगता है कि बेहतरीन और अच्छा पिज़्ज़ा कौन बना सकता है? ऑब्वियसली जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिसके पास एक कंप्लीट इन्वायरमेंट है, वो एक अच्छा सा पिज़्ज़ा बना सकता है. सो इट मीन्स रेसिपी अलोन इज नॉट इनफ, यू नीड अ कंप्लीट इन्वायरमेंट टू कुक. सो प्रोग्रामिंग वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे. लाइक C Sharp इज अ रेसिपी जो आपको दे दी जाती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनेगी. तो C Sharp हमारे पास पे क्या है? एक कंप्लीट रेसिपी है. एंड .NET framework is a complete environment to build desktop application, website, Unity games and a lot of other things. So basically the environment is .NET and C Sharp tells the computer what to do, which environment we have to use, what we have to use, what instrument we have to use, all the other things. Now C Sharp अकेला ही नहीं कि जो .NET को यूज करते हैं. We have other languages like F Sharp and Visual Basic .NET which also uses .NET framework. तो इससे हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि .NET हमारे पास एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट है जिसमें मुख्तलिफ फैमिलीज लाइक C Sharp, F Sharp, विजुअल बेसिक रह रहे हैं ताकि वो इस इन्वायरमेंट को यूज़ कर सके, इसके टूल्स को यूज़ कर सके और अमेजिंग एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकें.
Now this is the small introduction to .NET framework and C# language. So to start writing program in C#, हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर पे जाएंगे और सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो, एंड यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लिंक आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विजुअल स्टूडियो का, इसको हम ओपन कर लेंगे। नाउ अब विजुअल स्टूडियो इज अ कंप्लीट आईडीई। आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें आपको तमाम टूल्स मिल जाएंगे एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं गेट फ्री डाउनलोड को क्लिक करूंगा और यहाँ से हम अपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, नाउ अब जो हमारा विजुअल स्टूडियो वो इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा और यहाँ भी हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और अब जैसे ही वो इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपके जो पैकेज हैं वो इंस्टॉल होंगे और यहाँ पे जो आपका विजुअल स्टूडियो का सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इट विल टेक सम टाइम, और जैसे ही कंप्लीट होता है तो हमारा जो एडिटर है वो हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम सिंपली अपने एडिटर पे कोड राइट करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ इट हैव इंस्टॉल्ड ऑल फीचर्स फॉर विजुअल स्टूडियो। प्लीज इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे हम सर्च बार में जाएंगे और यहाँ से हम जाके विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और थोड़ी देर बाद ये हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द इंटरफेस। तो अगर आपने पहले विजुअल स्टूडियो नहीं यूज किया हुआ तो यहाँ पे आपको ये सारे जो प्रोजेक्ट्स क्रिएट हुए हैं ये आपको नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये जब आप स्टार्ट करते हैं काम तो तब आपको शो होते हैं। अभी आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको राइट साइड पे जो राइट मेन्यू है यहाँ पे आपका एक ऑप्शन शो हो रहा होगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सिंपली आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट्स कुछ शो करा देगा। आपने यहाँ पे सर्च करना है कंसोल ऐप, ठीक है, और यहाँ पे जिसके आगे लिखा है .NET फ्रेमवर्क करके इसको आपने क्लिक करना है। ये जो हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन है, ये कंसोल ऐप वाला है, उसको क्लिक नहीं करना। नीचे दिया गया कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क, इसमें हम अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का कोई सूटेबल सा नाम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या इसको नाम देता हूँ C# ट्यूटोरियल्स। ओके, ट्यूटोरियल 1, ठीक है, और इसको मैंने ये नाम दे दिया। अच्छा, तो यहाँ मैं इसको क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाए। यहाँ पे आप इसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं फाइल की, और ये कुछ ही देर में हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट विजुअल स्टूडियो इंटरफेस विच यू एक्सपीरियंस व्हेन यू फर्स्ट डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमारे पास एक मेन्यू बार दे दी गई है जिसमें हमें बहुत से ऑप्शन होंगे। लाइक जब आप इसको पहली बार खोलेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप एक एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठ गए, इतने आपको शुरू में सबसे पहले कंट्रोल्स नजर आ जाएंगे। ओके, सो सिंपली इसको यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मेन्यू बार दे दिया गया है। यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप अपनी फाइल एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कंपाइल एंड रन करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद यानी कि जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास इसकी नेम क्लास आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास इसमें जो मेथड्स हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा, जहाँ से हम अपने फाइल्स वगैरह को देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैब्स आ जाएगा। अभी हम प्रॉपर्टी टैब्स में कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके हमारा जो मेजरली काम होगा यहाँ प्रॉपर्टीज काम में हमें काफ़ी काम यहाँ पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं फिलहाल इसको क्लोज कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टेम्पलेट कोड यू विल सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ये जो 4 लाइंस दी गई हैं यूजिंग सिस्टम के नीचे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे इनका कोई काम नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे जैसे यूज होंगी तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। अब बेसिकली क्या, विजुअल स्टूडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब उन टूल्स में से अगर हमने किसी टूल को इस्तेमाल करना हो तो हम यूज करते हैं कीवर्ड यूजिंग का। ठीक है, यहाँ पे आप जो हमारे पास फर्स्ट लाइन देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूजिंग सिस्टम, यानी कि जितने भी हमारे पास टूल क्रिएट किए हैं उसमें से हम सिस्टम के टूल को यूज कर रहे हैं। नीचे अब हमारे पास आ गया नेम स्पेस, इसको आप फर्स्ट टाइम देखेंगे। अब नेम स्पेस क्या करता है, जिस तरह आप अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, ठीक है, आपके पास जो फाइल एक्सप्लोरर होते हैं उसमें डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं। नो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एन इंडिविजुअल फाइल सेपरेटली।
तो आप क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि आप मुख्तलिफ क्लासेस क्रिएट करते हैं एंड टू डिफरेंशिएट देम, हम उनको डिफरेंशिएट करने के लिए नेम स्पेस से अलग करते हैं, ठीक है। तो ये इजीली रिमेंबर रहेगा कि नेम स्पेस से क्या हम अपने क्लासेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सिंपली हम अपने कोड को मेंटेन कर सकते हैं नेम स्पेस से। अब यहाँ पे अब हमारे पास आ गया इंटरनल क्लास प्रोग्राम। नाउ इंटरनल इज एक्सेस मॉडिफायर। अभी हम यहाँ पे इसको आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। सिंपली अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्लास प्रोग्राम। तो क्लास प्रोग्राम क्या होता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो एक क्लास क्रिएट कर दी प्रोग्राम के नाम पे। जितना भी हम काम करेंगे क्लास प्रोग्राम में काम करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन दी गई है स्टैटिक वॉइड मेन, और आगे हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दी गए हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास वर्ड स्टैटिक। स्टैटिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर, वी विल टॉक इट एट द नेक्स्ट वीडियो एज वी गो ऑन। नाउ void, void is a type, it means that ये जो हमारे पास मेथड है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे इंट होता तो हमारे पास कोई इंट वैल्यू रिटर्न करता, कोई नंबर रिटर्न करता, फ्लोट होता कोई डेसिमल नंबर रिटर्न करता, इसलिए हम ये इनको लगाते हैं। नाउ void shows कि अभी हमारे पास मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। नाउ अब हमारे पास जो एक कीवर्ड आता है मेन, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब आपने मुख्तलिफ क्लासेस क्रिएट की, मुख्तलिफ मेथड्स क्रिएट किए। जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले ढूंढेगा कि आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, तो वो जाएगा मेन पे, जहाँ पे मेन लिखा हुआ है। जहाँ पे मेन लिखा है वहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट जाएगा और हमारे प्रोग्राम को वहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो जितना भी हमारा प्रोग्राम होगा वो मेन के अंदर से स्टार्ट होगा। ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये हम जब टूल्स को और एक्सप्लोर करेंगे तो हम इन आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे यहाँ पे जितना भी हम कोड लिखेंगे, ठीक है, दीज आर द नेम स्पेस, कर्ली ब्रेसेस जो कि हमारे प्रोग्राम को डिफरेंशिएट करते हैं, हमारी क्लास को डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट क्लासेस से, ठीक है। ये हमारे उसके कर्ली ब्रेसेस आ गए। नाउ अब इस क्लास के अंदर जो भी हम मेथड्स लिखेंगे वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख रहे हैं, ये वाले जो आपको शो हो रहे हैं। नाउ उस क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड है, उस मेन मेथड की दीज आर कर्ली ब्रैकेट्स, और जो भी हम अपना कोड लिखेंगे वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे जो कि मेन के अंदर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। तो यहाँ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा और डॉट कोट्स के अंदर जो कुछ मैं लिखूंगा वो एज सच हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस इज वीडियो 1 ऑफ C#, ठीक है। ये मैं लिखा ट्यूटोरियल यहाँ पे, और यहाँ मैं इसको स्टेटमेंट टर्मिनेट लगा दूंगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास सजेशन शो हो रहा है। ये इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब कंसोल डॉट राइट लाइन क्या कर रहा है, जो हमने यूज किया यूजिंग सिस्टम, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि व्हाट डज द कंसोल डॉट राइट लाइन डू एक्चुअली। अब नाउ कंसोल रेफर्स टू द ब्लैक स्क्रीन, जो हमें स्क्रीन शो होती है कंसोल की, जहां पे जिसको आप टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। कंसोल रेफर्स टू दैट। नाउ राइट लाइन क्या कहता है, डॉट राइट लाइन। नाउ डॉट लिंक्स द राइट लाइन टू द कंसोल, कहते हैं कि राइट लाइन जो है क्या बताता है कि कंसोल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या लिखने लगे, दिस इज द वीडियो 1 ऑफ C# ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा, यहाँ मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा और यहाँ पे आउटपुट शो करा देगा। तो यहाँ पे इसने आउटपुट शो करा दिया, दिस इज द वीडियो 1 ऑफ C# ट्यूटोरियल। नाउ अब इस पहले कोड को देख के घबराना नहीं है कि सिर्फ एक इतनी सी लाइन को हमने कंपाइल प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट शो कराने के लिए इतना बड़ा हमने कोड लिखा, ठीक है। ऐसा सच कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, हम क्लासेस डिस्कवर करेंगे, यू विल गेट टू नो कि C# में प्रोग्रामिंग करना इज मच इजियर। जब आप जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं। अब ये वर्ड्स थोड़े लग रहे हैं, अननोन लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनसे फैमिलियर होते जाएंगे आपको मजा आता जाएगा। सो दिस इज द वीडियो 1 where you have learned how to create your project, how to print output in the terminal, and आपने देखा कि what is C#, what is programming language, and why Microsoft actually created the language C#. So if you find this video helpful, make sure to subscribe my channel and like the video if you find this helpful. So in the next video we will cover variables and data types. So stay connected because this is a journey which never ends.